Good morning, class. Today, our topic is types of matrices. So, the number one type is rectangular matrix. If the number of rows and the number of columns in a matrix are not equal, the matrix is called a rectangular matrix. For example, a matrix A is equal to 3, 5. And the second one, matrix B is equal to 3 and 5. अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनता है वो क्या है। फर्स्ट पे हम रो लिखते हैं, बाद में हम क्या लिखते हैं, कॉलम। तो अगर हम इसकी रो देखें तो रो इसकी 1 है, और अगर हम इसके कॉलम देखें तो कॉलम इसके क्या है, 2 है। इसका मतलब है in this matrix number of row and the number of columns are different. So this type of matrix is called rectangular matrix. For example, a matrix B. So the order of the matrix B is equal to row multiplied by column. How many row in this matrix? 1 and 2. 2 row and 1 column. It means that in this matrix number of rows and number of columns are not equals. That's why this matrix is called rectangular matrix. So the second one is a column matrix. If a matrix has only one column, is called column matrix. For example, matrix A is equal to 3, 5. B is equal to 5. The diagram आप इसमें देखिए तो in this matrix have only one column. It means that this matrix is called column matrix. Same as अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी जो है वो ओनली वन कॉलम है। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स चाहे उसके नंबर ऑफ रो चाहे 2 हो 3 हो, बट इफ there are only one column in a matrix, that means that matrix is called column matrix. So the second one is a row matrix. If a matrix has one row, is called row matrix. For example, matrix A is equal to 5, 4. Matrix B is equal to 2, 3, 5. In these matrices have only one row. So that's why this matrix is called row matrix. Number 4 is a square matrix. If the number of rows and number of columns in a matrix are equal, the matrix is called a square matrix. For example, if we have a matrix A and their elements are 2, 5, 7, 9. So in this matrix there are 2 rows and there are 2 columns. तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये भी क्या है, 2 है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स जो कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
Number 5, diagonal mattress. A mattress with all its elements 0 except elements in the leading diagonal is called diagonal mattress. For example, mattress A is equal to 3 0 0 7. For example, mattress B is equal to 1 0 0 9. अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस में देखें तो मैट्रिसेस की ये वाली जो पोजीशन है इनको डायगोनल पोजीशंस कहा जाता है, इनको लीडिंग डायगोनल्स भी कहा जाता है. 3 and 7 on the position of leading diagonals, and these are the other elements. So according to the definition, these elements should be 0, but these elements should not be 0. So that's why this mattress is called diagonal mattress, because their diagonal elements are not equal to 0, but the other element equal to 0. So the next one mattress is a scalar mattress. Scalar mattress वो mattress होती है जिसमें जो इसके जो leading diagonals होते हैं वो same होते हैं. For example, हमारे पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7 0 0 7, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 5 0 0 5. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये भी 7 है, ये भी 7 है, बट द अदर एलिमेंट्स आर 0, बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर not equal to 0, and also they are same, equal to each other. Secondly, in the matrix B, the other elements are 0, but the diagonal elements are not equal to 0, and also they are equal to each other. जी, तो जब हम डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं तो डायगोनल मैट्रिसेस में भी ये वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स 0 नहीं होते, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते. डायगोनल्स में इन दोनों एलिमेंट्स जो है वो दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है. यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 3 है, ये 7 है. इस मैट्रिक्स में देखिए ये 1 है, ये 9 है, ये दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है. बट जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स में ये वाले एलिमेंट्स इधर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है. लेकिन जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो नंबर 7, null or 0 matrix. A matrix all of whose elements are 0 is called null matrix, and usually it is denoted by O. For example, O is equal to 0 0 0 0. 0 is equal to 0 0. ठीक है, तो लिहाजा नल और 0 मैट्रिक्स को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं. लिहाजा कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जो है वो 0 होंगे वो आपकी नल और 0 मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगी. सो नंबर 8 इज अ यूनिट मैट्रिक्स. द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 0 0 1 is called unit matrix. It is a 2 by 2 scalar matrix and it is denoted by capital I. दादा इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं they are exact equal to 1 and the other elements are equal to 0. दादा इस मैट्रिक्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और मोस्टली ये जो मैट्रिक्स है जब हम आगे फर्दर एक्सरसाइज
तो जहां कहीं पर भी कैपिटल आई आएगा इसका मतलब है कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स को। और यूनिट मैट्रिक्स को जहां कहीं पर भी हम इसको लिखेंगे उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 0 0 1। नजर बेटा दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, और इन्हीं टाइप्स को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, इन सारी चीज़ों को चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जब आप अपने माइंड में रखेंगे और इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 7.1 एक्सरसाइज उसी सूरत में आप सॉल्व करेंगे जब आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्डर फाइंड करना आता होगा, आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होगा। सेकेंडली आपको ये पता होगा कि फर्स्ट रो में कौन से नंबर्स एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में कौन से एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं, सेकंड कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से जितनी भी टाइप्स, फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स लिखी हुई है तो आपको इसको देख के पता चलना चाहिए कि दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द रॉ मैट्रिक्स। सेम एज स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो लिहाजा जो डेफिनेशंस मैंने आपको, जितनी भी टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं, उन सारी टाइप्स को अगर आप अपने माइंड में रखते हुए आप इस एक्सरसाइज को जो कभी मैं आपको सेंड करूंगा उसको आप इजीली जो है वो कर सकते हो। ओके क्लास, एंड थैंक यू।